بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں. اچھا, اب ہم نے پچھلے ہفتے 2 ہفتوں میں جب اسکول آن تھا فزیکلی ہم لوگ نے پڑھا تھا احرام مصر. ٹھیک ہے, اے گروپ بی گروپ دونوں کے ساتھ ہم لوگ نے احرام مصر پڑھ لیا ہے. آپ لوگوں کا جو موجود تھے ان کا ایک فزیکلی ٹیسٹ بھی ہو گیا احرام مصر کا. ٹھیک ہے, 10 مارکس کا. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اب یہ جو اس طرح ہماری کنڈیشن چلی ہے, جو آف ہو گئے ہیں اسکول, آن لائن ہو گئے ہیں, ہماری چھٹیاں جنوری تک ہیں اناؤنس, جہاں ابھی تک جہاں تک ہوا ہے. اس کے بعد جو اسکیڈول چینج ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ آپ لوگ کو اپڈیٹ کر دیا جائے گا. ہم لوگوں کے ہر ہفتہ یہ جتنے بھی ہفتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو ہم نے آج ٹاپک پڑھا, ہم کوشش کریں گے کہ فرائیڈے کو اس کا آپ لوگ کا ٹیسٹ لے لیں آن لائن. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ کے 60 ٹیسٹ ہوا کریں گے. 60 مارکس کے ٹیسٹ ہیں آپ لوگوں کے جو آن لائن آپ لوگوں نے دیے ہیں, دیں گے آپ لوگ آگے. اور اس کے بعد آپ کے کاپی مارکس اس میں ایڈ ہیں اور ریٹن مارکس ایڈ ہیں. یہ آپ لوگ کا اسپرنگ ٹرم کا یہ آپ اسی طرح بنے گا. اور یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ بار بار پوچھے جا رہے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ آپ لوگ کو ہر کلاس میں سمجھایا کریں گے کیا ہوگا. آپ لوگ کو کلاس لینا لازمی ہے آن لائن. اس کے اٹینڈنس شیٹ بھی مس بنا رہی ہیں ایز اے کلاس ٹیچر اور ایز اے اردو ٹیچر بھی اپنی. ٹھیک ہے, اٹینڈنس شیٹ آپ لوگ کی سب بنے گی, جنریٹ ہوگی. آپ لوگوں کو کلاس رول پتہ ہے, کیمراز آن رکھنے ہیں. ساری بالکل کلاس کی طرح کلاس لینا ہے, نہ کہ آپ لوگ کا ایسا ہو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ شادی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی تقریب میں آئے ہوئے کہ ہم کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں. پورا گھر گھوم رہے ہوتے ہیں سب آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے, صحیح. اسی طرح جیسے اسکول کے لیے اٹھتے تھے ویسے اٹھیے آپ لوگ. آپ تھوڑا ٹائم تھوڑا بڑھ گیا ہے کہ آپ کو 10 بجے کلاس ہے تو آپ 9 بجے اٹھ گئے, آرام سے فریش ہوئے, ریوائز کرا کہ ہم لوگوں نے کل کیا کیا پڑھا تھا, سب کچھ ٹائم ٹیبل کے حساب سے آپ نے ساری کاپیز سب جو چیزیں وہ اپنے ساتھ رکھی ایک ساتھ ہی. اپنا پینسل پاؤچ جو اسٹیشنری باکس ہے وہ اپنے ساتھ رکھا اور بالکل پراپر کلاس کے طریقے سے بیٹھ کے ساری کلاس اٹینڈ. مس اور اس کے بعد ایک منٹ بیٹا, لیٹ می فنش مائی ورڈ فرسٹ. اس کے بعد جو آپ کو ہوم ورک ملا ہے, آپ نے پورٹل پہ دیکھا کہ آپ کو ہوم ورک ملا ہے, وہ آپ نے ہوم ورک ڈن کیا اور اس طرح سے پھر آپ لوگوں کو کام ہو گیا. اچھا, اب جیسے آپ لوگ کو سرٹیفکیٹس ملے تھے آن لائن, اسی طرح بھی انشاءاللہ تعالی آن لائن میں آپ کو آن لائن جس نے اچھی کلاس اٹینڈ کی آپ لوگ فزیکلی آئیں گے اور آپ کے ریزلٹ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سرٹیفکیٹس دیں گے آپ لوگوں کو ایز اے کلاس ٹیچر ہر سبجیکٹ کی, کیونکہ ہم ہر سبجیکٹ کی رپورٹ لیتے رہیں گے آپ لوگوں کی. دیکھیں, وہ مسئلہ الگ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس گیجٹس کی کمی ہے یا لائٹ کی ہے نہیں ہے, تو یہ اس کے لیے آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ سولوشن نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, اب پہلے بتائیے تاہا, آپ پوچھیے آپ کو کیا پوچھنا ہے. جی, اس کے بعد ہم نے کلاس سٹارٹ کریں گے, اینڈ میں پھر آپ لوگ سے کوسچنز لیں گی. یس تاہا. مس ہماری کلاس آپ ہی لیں گی 7M کی بھی اور بالکل, 7O کی بھی. جی بالکل ہم ہی لیں گے اوکے. کہ ہمارا کورس یہی چل رہا ہے. آپ لوگوں کو اردو کے لیے 7O 7M کو ہمیں جوائن کرنا ہے, انگلش کے لیے 7M والوں کو سر شاکر کو اور 7O مس ام ایمن کو, اور میتھس کے لیے وہی سر ہیں دونوں جو ہیں. آپ لوگ کو پورا ایک سرکولر مل گیا ہے, آپ اس کو اچھی طرح پڑھیے. اور سندھی کے لیے الگ کلاسز مینشن ہیں ڈیٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ 7M والوں کے لیے. صحیح. اچھا, آپ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں کی کاپیز سبمٹ ہوں گی ہر سبجیکٹ کی, تاکہ چیک ہو سکیں. اس ہفتے کوئی کام مطلب کہ نہیں ہوگا تو آپ لوگ کو ایکسپلینیشن ہو جائے گی. جو آپ لوگوں کو جو کام کروانا ہے اس ہفتے پورا آپ لوگ کو واٹس ایپ پہ بھی, اور آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں یہ واٹس ایپ پہ اور پورٹل پہ سارا کام مونجے دوڑوں کا میں وہاں پہ آپ کو پکچر سینڈ کر دیں گی. تو برائے مہربانی بیٹا آپ کے پاس پورا ہفتہ ہوگا. جمعے کو میں ایکسپلینیشن کریں گے. آپ کے پاس آج کیا ہے, پیر سے لے کر اتوار تک پورا ہفتہ ہے, اور سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ آپ برائے مہربانی مونجے دوڑوں کا بھی کام مکمل کرتے رہیے گا. پہلے مس احرام مصر, ایک منٹ رابعہ ویٹ کیجیے گا. احرام مصر کا جو کام کروایا ہے وہاں سے لے کے مونجے دوڑوں تک کا کام جو بھی ہے وہ آپ کو پکچرز بھیجیں گے ہم. آپ سب اپنا مکمل کر کے نیکسٹ ویک آپ کاپی سبمٹ کروا دیں گے. جی رابعہ پوچھیے. جی بیٹا. نہیں میں آپ نے بتا دیا تھا احرام مصر کا ہمارا کام نہیں ہوا ہوا تھا نا. ہاں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے, آپ لوگ کو پورا کام مس بھیج دیں گے. آپ لوگ صاف ستھرا جیسے میں آپ کو بتاتی ہیں مورخہ ڈالنا ہے, اشاریہ بنانا ہے, کیونکہ آپ کی کاپیز جب چیک ہونے آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پہ آپ کو پورا ایک فیڈ بیک دیں گی مس آپ لوگوں کو, آپ کے پیرنٹس کو. آن لائن جیسے آن لائن ہوتا ہے
تو आपके पेरेंट्स आप लोग का फीडबैक पढ़ेंगे वो कि आपने कैसे क्लास अटेंड की, CW मुकम्मल है, होमवर्क मुकम्मल है, किस सब्जेक्ट में कुछ जरूरत है। वीकली फीडबैक आप लोग के पेरेंट्स को जाया करेगा, वो आप लोग अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे, फिल करवाएंगे उन पेरेंट्स से, फिर आप हमें सबमिट किया करेंगे, वो आपको प्रोसीजर में समझा देंगी। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपने उर्दू की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अपने कैमरा सिर्फ इमरान का और शायान का ऑन है, इसका मतलब सिर्फ ये दोनों, और अहमद अली का था, सारीना का, ये आप लोग, इसका मतलब सिर्फ यही, और अरहम का भी है, सिर्फ ये 4 बच्चे प्रेजेंट हैं आज। बाकी सबके सो कर उठे इसलिए कैमराज ऑन नहीं कर रहे हैं। आप लोग को रूल्स भेजे थे, उस हिसाब से आपको क्या करना है बच्चों, कैमराज ऑन रखने हैं, बाल सब सेट करने हैं आप लोग को। यस मोहम्मद, अच्छे लग रहे हैं आप लोग सब जी। चलें, अब आपको ये मिस क्लिप दिखा रही है, ठीक है, आप ये देखिए, एक डॉक्यूमेंट्री मोंदे दड़ो के हिसाब से, फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, ओके। अपने अपने माइक म्यूट रखिएगा बराए मेहरबानी बच्चों, माइक म्यूट रखेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा रिकॉर्डिंग के लिए। अच्छा ये बात है, आप सबको इसकी आवाज आ रही हो ना, तो थम्स अप करके बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम होती है, मुझको पता नहीं चलता है। नोट साथ रखना क्यों जरूरी है, इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, आपके दोस्तों मोहनजो दड़ो जाएं तो 20 रुपए का नोट साथ रखना क्यों जरूरी है, इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, आपके पास 20 रुपए का नोट होगा? घबराएं नहीं, हम आपसे उधार नहीं मांग रहे, सिर्फ इस नोट की असल कदर कीमत का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपके नजदीक 20 रुपए के इस नोट की कोई खास वक़्त ना हो, लेकिन पाकिस्तान में एक जगह ऐसी जरूर है जहां 20 रुपए का ये मामूली नोट 20,000 की मालियत का लगने लगता है। उस जगह का नाम है मोहनजोदड़ो। लेकिन वहां जाते वक्त ये नोट साथ रखना क्यों जरूरी है, जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल राह हयात सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो राह हयात को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जी हाँ, बात हो रही थी 20 रुपए की। उस जमाने का अमेरिका, हम में से कौन है जो अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जाने के ख्वाब नहीं देखता होगा। बस यूं समझ लें कि मोहनजोदड़ो 2500 कबल मसीह का एक अमेरिका था। इन खंडरात की गलियों और बाजारों में चलते हुए तसव्वुर करें आप 4,500 बरस पीछे चले गए हैं। ये आपके सामने मोहनजोदड़ो का आलीशान शहर है। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, हर तरफ कई मंजिला पुख्ता और मजबूत मकानात हैं। उधर देखें, आपको कुशादा सड़कें और बाजार भी नजर आएंगे। शहर की हिफाजत के लिए ऊंची फसील भी तामीर की गई है, जहां से अशनान घाट और अनाज जखीरा करने का गोदाम भी नजर आएगा। एक बड़ी दरसगाह और आम सिराय के निशानात तो आज भी मौजूद हैं। गर्ज यहाँ के खंडरात में आपको उन तमाम सहूलियात के निशान मिलेंगे जो उस जमाने का इंसान तसव्वुर कर सकता था। कॉर्नर प्लाट की तमन्ना, मोहनजोदड़ो आकर कुछ वही एहसास होता है जो आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की किसी पोश सोसाइटी जाकर होता है। पहले तो इंसान यहाँ के तर्ज तामीर के मयार का मुतारिफ होता है। रफ्ता रफ्ता ये खुशी एहसास महरूमी में तब्दील हो जाती है कि काश यहाँ एक कॉर्नर प्लाट हमारा भी होता। मजाक एक तरफ, लेकिन मोहनजोदड़ो वाकई जदीद टाउन प्लानिंग का एक नमूना है। सारा शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम गलियां एक दूसरे को 90 दर्जे के जाविये पर काटती है। माहिरीन कहते हैं कि ये मंसूबा बंदी के तहत बसाए गए शहर की पहचान है। दूसरी तरफ
टेढ़ी मेढ़ी गोलाई में बनी गलियां खुदरू गांव की निशानी है। आज भी इन गलियों में चलें तो एक तरतीब और प्लानिंग का एहसास होता है। कतार अंदर कतार पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खिला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत मौजूद थी। मकानों से गंदे पानी की निकासी के लिए बनी जेरे जमीन नालियां आज सैकड़ों साल बाद भी जूं की तू मौजूद है। अमीर अलग और गरीब अलग। इतनी तरक्की याफ्ता तहजीब में भी अमीर और गरीब का फर्क मौजूद था। मालदार और हुकूमती और मजहबी असर व रसूख वाले अफराद मरकज शहर, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग शहर से बाहर रहते थे। यहाँ के पोश इलाके के हर घर में कम से कम एक गुस्ल खाना जरूर मिलेगा। अमीरों के घरों में सहन भी लाजमी था, जबकि सहन के इतराफ में छोटे बड़े कमरे बने हुए थे। इन घरों के कचरे को ठिकाने लगाने का निजाम भी था। घरों की बैरूनी दीवार में मौजूद सोराख के जरिए कूड़ा करकट बाहर फेंका जाता था, जो सफाई का अमला ले जाता था। टॉयलेट जो फ्लश होता था। क्या आप यकीन करेंगे कि मुअनजो दड़ों में दरियाफ्त होने वाले बैतुल खिला में फ्लश सिस्टम भी मौजूद था। बाज घरों में कमरों के अंदर ईंटों से खड्डी बनी हुई है, जिसमें मौजूद सोराखदार बर्तन खुमदार रास्ते से जमीन दोज नाली से मुल्हिक है। ये उस जमाने का फ्लश सिस्टम था। मुअनजो दड़ों की तजदीद और तहजीब का एक नमूना यहाँ के म्यूजियम में भी मिलता है। नुमाइश पर रखे नवादरात देखें तो पता चलता है कि यहाँ के लोग 2500 कबल मसीह में भी कांसी जैसी धात का इस्तेमाल जानते थे और उससे औजार और दीगर अशिया तैयार करके बरामद किया करते थे। मुअनजो दड़ों के किसान कपास काश्त किया करते थे और यहाँ के कारीगर कपड़ा बुनने का फन भी जानते थे। खंडरात की खुदाई से कपड़ों का कोई टुकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन मट्टी के ऊपर बने कपड़े की बुनाई वाले नकूश से इस बात का सबूत जरूर मिलता है। अच्छा, शहर कैसे मिला? ये सन 1922 ईस्वी की बात है कि हिंदुस्तानी माहिर आसारे कदीमा राखाल दास बैनर्जी को लाड़काना शहर के करीब से कदीम तहजीब के कुछ आसार मिले, जिसकी इतला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई। डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इस जगह खुदाई शुरू करवाई, जो अगली कई दिहाइयों तक चलती रही। आखिरी मर्तबा सन 2010 में यहाँ खुदाई का काम किया गया। तारीख ने वादिये सिंध की तहजीब की दरियाफ्त का सहरा सर जॉन मार्शल के सर रखा। सूबा सिंध के महकमा आसारे कदीमा ने उनके इस कारनामे का एहसान इस तरह उतारा कि सर जॉन मार्शल के जेरे इस्तेमाल मोटर कार मुअनजोदड़ो के मकाम पर महफूज कर दी। आप यहाँ आए तो शीशे के बक्स में बंद ये गाड़ी देखना ना भूलें। मर्दों का टेला। हम सब बचपन से दरसी किताब में पढ़ते आए हैं कि मुअनजो दड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब मुर्दों का टेला। हम सब बचपन से दरसी कुतुब में पढ़ते आ रहे हैं कि मुअनजो दड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब मुर्दों का टेला है। लेकिन ये नाम कब और कैसे पड़ा और इस जगह का असल नाम क्या था, ये किसी को नहीं पता। दरियाफ्त से कबल मकामी लोग इस जगह को अरसे दराज तक इसी नाम से पुकारते आए थे, लिहाजा माहिरीन आसारे कदीमा यहाँ आए तो वो भी यही नाम इस्तेमाल करने लगे। मुअनजो दड़ो मिस्र और मेसोपोटामिया की तहजीब का अहम असर था। मेसोपोटामिया से मिली तहरीरों में मशरिक में मलूहा नामी एक जगह का जिक्र मिलता है, जिसके साथ तिजारती रवाबित कायम थे। माहिरीन का ख्याल है कि मुअनजो दड़ो ही दरअसल वो जगह है, लेकिन वसूख से कुछ कहना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मुअनजो दड़ो के रस्मुल खत को ना समझ लिया जाए। लफ्ज जो बातें नहीं करते। वादिये मेहरान के बहुत से सरबस्ता राजों में से सबसे दिलचस्प राज यहाँ का रस्मुल खत यानी लिखाई है। इसे पढ़ने की कोशिश दुनिया भर के माहिरीन ने की है, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। माहिरीन आसारे कदीमा का ख्याल है कि जब भी इस रस्मुल खत का भेद खुला, वादिये सिंध की तहजीब के बारे में नई मालूमात। अब हर घर में रोजाना बन रहा है कुछ खास। मेरा नाम इरमा जावेद है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। का एक वसी तर खजाना हाथ लगेगा।
मोहनजो दड़ो से मिलने वाली 1200 से ज्यादा मोहरें भी एक सरबस्ता राज हैं। इन पर लिखी तहरीर के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अक्सर मोहरों पर जानवरों की और देवमालाई शक्लें बनी हुई हैं। जानने वाले बताते हैं कि ये तमाम दस्तखती मोहरों की हैसियत रखती हैं, यानी आला ओहदों पर फायज लोग उन्हें सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ मोहरें तिजारती सामान की हिफाजत के लिए गड़ियों में या बोरियों में जब्त की जाती थी। राहिब और रकासा मोहनजो दड़ो के खंडरात से निकलने वाले नवादरात यहाँ के म्यूजियम की जीनत है। इनमें साबुन, पत्थर से तराशा गया पुजारी और कांसी से बना रकासा का मुजस्मा दुनिया भर में वादी सिंध की तहजीब की पहचान है। दाढ़ी वाले पुजारी के मुजस्मे ने चादर ओढ़ रखी है जिस पर 3 पत्तियों वाला फूल बना हुआ है जो अजरक के डिजाइन से मुशाबिहा है। मोहनजो दड़ो की रकासा ने पूरे बाजू में चूड़ियां पहन रखी हैं जो आज भी चोलिस्तान और थर की खवातीन का रिवाज है। ये एक कमसन फनकारा है जो बरहना है, लेकिन ये वसूख से कहना मुश्किल है कि वो रक्स ही कर रही है। राहिब का मुजस्मा तो आपने पाकिस्तान के हर छोटे बड़े अजायब घर में देखा होगा या कम अज कम जमाने तालबे इल्मी में निसाबी कुतुब में उसकी तस्वीर देखी होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुजस्मे की असल कराची के नेशनल म्यूजियम की खुफिया तिजोरी में मजबूत है। यहाँ तक कि मोहनजो दड़ो के अजायब घर में भी इस मुजस्मे की प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनी नकल देखने को मिलेगी। ओके बच्चों, आप ये देखिए, अभी आपको आधी वीडियो हमने दिखाई है, सही है? मौजूद आवाज सही आ रही है सबको? ओके, ये इसका लिंक आप लोग को पोर्टल पे भेज दिया हमने, ठीक है? पोर्टल पे आपके पास लिंक है, आप इसको देखिएगा फुर्सत से। अभी हमने 10 मिनट्स की देखी है, 5 मिनट्स की रह गई। इसमें कितने वाज़ेह तरीके से बताया गया, आपको पता चला कि मोहनजोदड़ो की क्या तारीख है, हिस्ट्री क्या है, ये उसमें क्या मौजूद था, शहर आबाद था एक पूरा। अगर आप आज के जदीद टेक्नोलॉजी को देखें ना, सबसे ज्यादा जदीद अमेरिका है, उसी तरह का उस जमाने का वो अमेरिका था। वो क्या मतलब हुआ कि वहां पे मुनज़्ज़म बिल्कुल अरेंज, जैसे अच्छा सोसाइटी होती है ना, वैसे सोसाइटी और पूरा शहर आबाद था वहां पे। जैसे सेवरेज का, नकासी का एक अच्छा निज़ाम मौजूद था वहां पे। वहां पे घर घर बने हुए थे। वहाँ की दस्तकारी और ये जो उनके रहन सहन का तरीका, कल्चर, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो नवादार के नादिर की जमा है, मतलब कि जो कीमती चीज़ें अशिया थी, जैसे उनकी बच्चों के खेलने के खिलौने मिट्टी के बने हुए, और औरतों के जेवरात, और वो जो चीज़ें, जितनी चीज़ें नायाब चीज़ें थी वो उनकी मिली हैं। और उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग कितने मेहनती थे। मोहनजोदड़ो में जो लोग रहते थे, आबाद थे लोग, वो कितने मेहनती थे और वो अपना किस तरह काम किया करते थे। तो इस तारीख से हमें ये पता चलता है कि मोहनजोदड़ो का जो ये जो है शहर पूरा आबाद था, उसमें इन लोगों को क्या-क्या मौजूद थी। मतलब कि अगर वहाँ पे खुदाई की गई, खुदाई मतलब कि वहाँ एक डिस्कवर किया गया ना, ये दरियाफ्त किया गया है कि शहर, पता चला कि यहाँ एक शहर आबाद था जो कि ज़मीन बोस हो गया था। फिर उसको माहिरीन आसार कदीमा, जो कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने इसको खोदा और उसको पता चला कि इसमें क्या-क्या मौजूद है। खुदाई से क्या मिला है, यहाँ पे मिट्टी के पुख्ता बर्तन, ठीक है, बर्तन मिले हैं, बच्चों के खेलने के खिलौने मिले हैं। तो ये इस बात का सबूत देता है कि यहाँ के लोग कितने हुनरमंद थे। हुनरमंद का मतलब क्या होता है कि कितने उनमें कितना फन था, कितने अच्छे तरीके से वो काम करते थे। उनमें एक हुनर, एक आर्ट पाया जाता था कि मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारी ना स्किल्स जिसे हम कहते हैं। जी जी सारी ना। टीचर मैं कह रही हूँ जो मोहनजोदाड़ो था वो एक जमीन पर शहर था। एक शहर था कि जो कि जमीन बोस हो गया था, ठीक है। खुदाई से फिर यहाँ पे खुदाई की गई और इसको ये दरियाफ्त किया गया इस शहर को। अच्छा, मोहनजोदड़ो कहाँ? वादी सिंध की कदीम तहजीब का मरकज है। इसको सिंध सिंध हाँ, सिंध की सकाफत है ये। सिंध में तारीखी मुकाम है ना, वहाँ पाया जाता है ये। जी राबिया।
मैं बोलिए। जमीन को मतलब के अंदर दब गया था। हाँ जी, दब गया था। अच्छा, अच्छा यहाँ पे एक मुजस्समा भी है, आप बुक में देखेंगे तो वहाँ मुजस्समे पाए जाते हैं, मुजस्समा मिला है। वो इनके शहंशाह मुजस्समा का स्टैचू जिसको दरियाफ्त हुआ है वहाँ पे खोदा गया, उसके बाद मिला। तो ये मुजस्समा जो था वो शहंशाह, इनके शहंशाह के इसमें था, उसकी याद में इनको बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था एहराम मिस्र में, है ना, मिस्र ये जो मकबरे बनाए जाते थे, एहराम बनाए जाते थे। इसी तरह जो पुराने ज़माने के जो लोग हैं, ये जो मिट्टी का काम किया करते थे, उससे तो उसके बर्तन, खाने के इस्तेमाल के बर्तन, बच्चों के खेलने के खिलौने, ठीक है, मुजस्समे बनाया करते थे ये लोग, ये उनकी हुनरमंदी थी। सही। अच्छा, टीचर, इस तरह मुख्तलिफ, अच्छा जी, हाँ जी, सारिना क्या कह रही हैं? मुख्तलिफ तहजीब में टीचर इनके क्या मिलता है? जी जी बताइए। मोहनजोदाड़ो आपने बोला था कि किस चीज का मरकज है? मरकज नहीं, ये वादी, ये सिंध है ना हमारी, सिंध की, हाँ, सिंध का मरकज है ये, सिंध में पाया जाता है ये हमारा, ठीक है। अच्छा अच्छा, मोइन जो दड़ो, मोइन का मतलब क्या है यहाँ पर? ये एक सिंधी का लफ्ज है ना, मोइनजो दड़ो, ठीक है। तो मोइन मतलब मुर्दे, मरे हुए, डाइड। यस यस, कौन बोल रहा है? यस शब्बर, आप बता रहे हैं, बताइए बेटा, शाबाश जी, बताइए। टीचर मैंने बोला था। मुर्दों का टेला। हाँ शाबाश जी जी, हलीमा आपकी भी आवाज आई थी हमें। ये है मुर्दों का टीला। टीला मतलब क्या होता है? सिंधी में शहर को कहते हैं। मोइन, मोइन मतलब है मुर्दे, ठीक है। दड़ो मतलब टीला या शहर, टाउन जिसे हम कहेंगे, ठीक है। मोइनजो दड़ो, मुर्दों का टीला या मुर्दों का शहर, इसको ये कहा गया है इसलिए कि जब ये दरियाफ्त हुआ तो यहाँ से जो पुरानी जो निशानियां मिली हैं यहाँ पे आसार कदीमा को, उसमें ये शामिल है कि यहाँ पे इन लोग की जो मुर्दे, जो डेड बॉडीज थी, उनके जो फॉसिल्स थे, तो टीचर हड्डियां। कोई डेड बॉडी नहीं मिली वहां से? नो बेटा, ये तो कदीम जमाने की है, ये बहुत पुरानी है, ठीक है। और ये टीचर इसकी, कुछ उनके तस्वीर फॉसिल्स, उनकी हड्डियां मिली हैं, ठीक है। बर्तन मिले हैं, उसकी खुदाई में मुजस्समे उन्होंने दरियाफ्त किए, खोजे हैं। बच्चों के खेलने के खिलौने हैं, मोहरे हैं। मोहरे क्या होती थी? सील हैं, मोहरे, स्टेम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उस जमाने में एक स्टेम या ये मोहरे इस्तेमाल की जाती थी तिजारत के लिए। बादशाह शहनशाह अपने हुक्म जारी करने के लिए ये मोहरे सीले इस्तेमाल करते, जिसे हम स्टेम कहते हैं, वो दरियाफ्त हुई हैं। तो ये एक ना क्या कहते हैं, ये आसार कदीमा की निशानी मिली। अब जो लोग आते हैं देखने के लिए तो इसको देखते हैं और इस तहजीब को और इस शहर को देखते हैं, और हैरान होने वाली बात है कि कितना मुनज़्ज़म शहर था ये उस दौर का। जैसे इस दौर के हम जैसे तरक्की याफ्ता में अमेरिका कहते हैं, तो उस दौर का ये तरक्की याफ्ता उस दौर में था। एक हर चीज़ मुनज़्ज़म तरीके से थी, बच्चों के खेलने का मैदान, ठीक है। यहाँ पर आप देख सके हैं तो अगर इसमें जो बताया था कि ये यहाँ पे घर आबाद थे, नक्काशी का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम मौजूद था इसमें, ठीक है। सही जी, और किसी को कुछ पूछना है? टीचर, जी जी जी, नक्काशी नक्काशी मतलब होता है कि ये सेवरेज लाइन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। बहुत धूप पड़े, इसको बंद कर दे, नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, सही, चलें। अच्छा बच्चों, ये जो अब आप लोग का क्या काम है कि ये आप लोग को जो लिंक दे दिए हैं हमने, आप लोग उसको देखेंगे। लिंक के जरिए आप उसका काम करेंगे, इसको वीडियो देखेंगे और आपको काम शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना ये सबक चैप्टर खोलिए, मोइंजो-दड़ो। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं। अभी जब मैं ये वीडियो शेयर कर रही थी, दो बच्चे स्क्रीन पे छेड़खानी कर रहे थे तो उनका नाम आ गया था, तो बराए मेहरबानी नेक्स्ट टाइम नहीं कीजिएगा बच्चों। रजा, रजा आपका मैसेज आया था कि आपकी जो है वीडियो जो है ये अटक रही है, ब्लर हो रही है और लैग हो रही है। तो बेटा ये जो इसका लिंक हमने शेयर कर दिया है,
ٹھیک ہے. آپ اس لنک کو پریس کریں گے اور آپ کو یہ ویڈیو پلے ہو جائے گی. پورٹل پہ جائیے, واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر دیں گے آپ لوگوں کو ہم, تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, چلیں رضا اسٹارٹ ریڈنگ. اور سب کے کیمراز آن ہو بیٹا, صرف 4-5 بچوں کا کیمرہ آن ہے. اب نیکسٹ ٹائم ہمیں کہنا نہ پڑے. آپ کی یہ ویڈیو بن رہی ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اس میں اچھا لگے گا مس کھڑکیوں سے باتیں کر رہی ہیں, صرف کالی کالی کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں بس, اور آپ لوگ اپنے چہرے بند کر کے بیٹھے ہوئے. سارینہ بالکل صحیح طرح سے بیٹھی ہیں ماشاءاللہ, احمد علی ہیں, شایان ہے, طاہا ہے, عمران بالکل صحیح طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, محمد بھی. تو اسی طریقے سے بیٹھنا ہے نا آپ لوگ کو. آپ کے پاس آپ کی کتابیں موجود ہوں, آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کچھ کر رہے ہوں, یا کوئی کام کرنے کو دن میں سے آپ لوگ سب فوراً کام کر لیں. چلیں رضا اسٹارٹ کری ریڈنگ, آپ سے اسٹارٹ کریں گے, اس کے بعد نیکسٹ ٹرن آئے گی. آپ اپنی درسی کتاب نکالیے. حدود نوادرات ہمیشہ صفحہ نمبر سے اناؤنس کیجیے سب وہیں سے, اور تیز پڑھیے گا. جہاں سے آپ کو اسٹاپ کریں گے دوسرا وہیں سے اسٹارٹ کرے گا پھر. اوکے, نوادرات ہمیشہ سے صفحہ نمبر ماہرین. بتائیے رضا بیٹا, صفحہ نمبر بتائیے. 19 میں. اوکے اسٹارٹ. نوادرات ہمیشہ سے ماہرین ان آثار قدیم کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں, جو یا کھوج لگاتے رہتے ہیں. ہاں پڑھیے بیٹا, ہجی کیجیے. کا ان نوادرات کا تعلق کس زمانے سے ہے؟ اس دور کی تہذیب و ہجی کر کے بتائیں. ٹیچر جی میں مطالعہ کر لوں؟ صحیح نہیں رکی بیٹا, ذرا محمد رضا کو کرنے دیں. ہاں یس رضا, نمبر 19 پیج ہے نا. نوادرات ہمیشہ سے ماہرین آثار قدیمہ کا توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں, جو یہ کھوج لگاتے رہتے ہیں ان نوادرات کا تعلق کس زمانے سے ہے, اس دور کی تہذیب و تمدن کیا رہا ہے. یس آگے. اور ان پر کندہ تصاویر اور اشکال کیا ظاہر کرتی ہیں. دنیا میں مصر اور دنیا میں مصر اور میسوپٹومیا کی قدیم تہذیب بہت پہلے منظر عام پر آ چکی تھیں. پاکستان میں یہ آثار ہمیں دریائے سندھ کے کنارے ملے ہیں. یہ دنیا میں وادی مہران کی تہذیب کے نام سے جانے جاتے ہیں, اور پاکستان میں موئنجو داڑو اور ہرپا کے نام سے شہرت رکھتے ہیں. یہ اوکے بیٹا, نیکسٹ احمد ادیب, یور ٹرن. یہ کھنڈرات کی احمد انمیوٹ مائک بیٹا, ہری اپ. آپ لوگ آپشن دیے ہوئے, آپ فٹافٹ کیجیے بیٹا, ٹائم نہیں ہے اور بچے بھی ویٹ کر رہے ہیں. ایک تو آپ جن کے کیمراز آن نہیں ہوں گے ایبسنٹ لگائیں گے.
دانیہ اوپن یور کیمرا. شبر, ارہم, حلیمہ, عباس, ہبا, حوریہ, اسرا, رابعہ, رضا, احمد, زینب. کائنڈلی بیٹا. احمد. मिस मेरा मोबाइल पे लगा हुआ है. اچھا چلیں شایان اسٹارٹ ریڈنگ بیٹا. یہ کھنڈرات کی 1000 سے پارٹیسپیشن آپ لوگ کی بالکل زیرو جا رہی ہے. فیڈ بیک کیا دیں گے ہم اردو کا بتائیں. چلیں شاباش. کھنڈرات کی 1000 سے زیادہ زائد بستیاں ہیں جنہیں اب سے تقریباً تقریباً 90 سال قبل دریافت کیا گیا تھا. ماہرین آثار قدیمہ موئنجو دڑو کی تباہی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکے ہیں. بعض کے خیال میں کوئی وبائی مرض اس نقل مکانی کا سبب بنا، لیکن اس شہر کی تباہی کا اصل سبب اب تک معلوم نہیں ہو سکا. اوکے گڈ. اوکے ابیر اٹس یور ٹرن بیٹا. ٹرن دا پیج. موئنجو داڑو اور ہڑپا کی بیس وقت کھدائی حیران کن ثابت ہوئی. اس کے نتیجے میں دھکانی لشکر کشی سے بہت پہلے شہر اثر سامنے آئے. 1922 کی کھدائی سے ماہرین اور دوسرے نوادرات دریافت ہوئے. سرجان مارشل نے 1925 میں 1925 میں 1200 مزدور اس عظیم کھدائی میں استعمال کیے. اس کھدائی میں زمین دوز گھروں پر مشتمل ایک مکمل شہر دریافت ہوا جو گنجان آباد ہونے کا ثبوت دیتا ہے. اوکے بیٹا آج ہماری کلاس کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاس 3 منٹ ہیں. ٹھیک ہے چلیں. اوکے